किड्डी वड्डी ट्रबल च पा दिता इन्होंने। अडानी ने नहीं, सगों भारत की सरकार नूं विपता पै गई। यहाँ पे शायद इस कंपनी ने कोई तो घोटाला किया है, क्योंकि इतनी तेजी से ये ऊपर कैसे आ गया। अच्छा, अडानी के केस में, गौतम अडानी के केस में उन्होंने मैनिपुलेशन की है, इन्होंने दोष लगा दिए जी। अभी मुकदमा चला नहीं जी। अब क्या होगा? इसका मतलब तो यही बनता है कि सेबी को पता तो है कि ये अडानी ग्रुप ने कुछ तो गड़बड़ किया है। हो सकता है इस केस में नहीं, लेकिन किसी और केस में। तो बता रहा हूँ, 2019 में अडानी ने एयरपोर्ट्स सेक्टर में पांव रखा। 2021 तक 8 बड़े एयरपोर्ट हिंदुस्तान के अब अडानी चला रही है। वो कहते जे अडानी होर भी थले लग गया, उन्हें नहीं थले लगना, भारत दे लोकां ने थले लगना। ये पैसे ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਡਾਨੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਾਂਗੇ जी। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ जी। ਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ क्यों? हाँ, धमकियां तो दे रहे हैं। अब वो सही में धमकी है या गीदड़ भप्पी है, वो वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये माइन, कारमाइकल माइन खरीदने की बात हुई थी, तब अडानी साहब को कोई बैंक फंडिंग नहीं दे रहा था। मोदी साहब गए थे ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे, और उसके बाद वो डील हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक कंसोर्शियम बनाएगी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। जी जी जी। ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? जैसे अंबानीज का 80s में उनका भी स्टॉक डूबने वाला, तो ये रातों रात जो है पैसा आ गया कहीं से मार्केट में और वो बच गए। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਟਾਟਾ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबको पता है कि इनके जो है कनेक्शंस बड़े क्लोज हैं, और शायद इंडियन गवर्नमेंट इनको बैक कर रही है। इस कंपनी का फॉर्चून इस गवर्नमेंट के साथ जो है जुड़ा हुआ है। कल को ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो ये कंपनी भी शायद ना रहे। The Harjinder Thin Show। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਅਡਾਨੀ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਨ, ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਹਿੰਡਨਬਰਗ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਿਵੇਂ ਗਰਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਧਨਾੜ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਤੇ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ PhD ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ UBC ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। आपका बहुत शुक्रिया ठेन साहब। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ट्रबल 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ है। हाँ, बात आपकी बहुत सही है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर कंपनी है, बहुत छोटा सा है, इसमें 5-6 लोग ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इनके जो बॉस हैं नेथन एंडरसन, इनको, इनके बारे में कहा जाता है कि इनमें ये खूबी है कि वो कहीं पे भी फ्रॉड हो रहा है कॉर्पोरेट, वो सूंघ लेते हैं। तो अभी 2020 के बाद ये उभर के आए हैं पब्लिक डोमेन में। इससे पहले बहुत ज़्यादा इनका प्रेजेंस नहीं था, लेकिन इनका काम है कि ऐसे स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनमें कोई अगर गड़बड़ी हो रही है, कोई हेरा फेरी हो रही है, फेरबदल स्टॉक्स का हो रहा है, या फिर जो है
एप्रिसिएशन ज़बरदस्ती ओवर वैल्यू किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को पता लगा के फिर उसको शॉर्ट सेल करना। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग के बारे में बताओ, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग शब्द बार 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 आ रहा है। जी जी। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसके स्टॉक प्राइसेस हैं $100 पर शेयर पर स्टॉक। तो अब मुझे ये शुबा हुआ कि यहाँ पे शायद इस कंपनी ने कोई तो घोटाला किया है, क्योंकि इतनी तेज़ी से ये ऊपर कैसे आ गया। तो मैंने इस पे खोज खबर की, मैंने कुछ टाइम बिताया, फिर मुझे पता चला, इसका यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, किसी ब्रोकर से मैं वो स्टॉक खरीदूंगा। $100 का मैंने, मान लीजिए मैंने एक स्टॉक खरीदा, $100 मैंने दिए, सॉरी मैंने किराए पे लिया, उधार लिया। ब्रोकर से आप उधार लेते हैं, बोरो करते हैं स्टॉक को। तो मैंने बोरो किया, फिर मैंने वो मार्केट में जाके $100 में बेच दिया। तो जो लिस्टेड प्राइस है उतना ही मुझे मिला। इसके बाद मैंने रिपोर्ट साझा कर दी कि इन लोगों ने ये सब गड़बड़ किया है और इसके स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है। तो इस वजह से मार्केट में गिरावट आ सकती है और मैं उसी पे बेट कर रहा हूँ। तो मार्केट में गिरावट आ गई, स्टॉक प्राइसेस गिर गए। अब मैं क्या करूँगा, वही स्टॉक जो मैंने $100 में बेचा था, अब मैं उसका वैल्यूएशन गिर के मान लीजिए $15 हो गया, तो अब मैं उस $15 खर्च के वो वापस खरीदूंगा और फिर शेयर ब्रोकर से जिससे मैंने उधार लिया था उनको मैं वापस कर दूंगा। तो मेरा $85 का फ़ायदा हो गया यहाँ पे, और जबकि उस कंपनी का नुकसान हो गया। शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये कंपनी एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है। इनको सिर्फ मुनाफा बनाना ही नहीं, इनको लोगों को आगाह करना भी है इनका काम, इनका मकसद। हाँ, कि पब्लिक का नुकसान ना हो। तो ये बड़े कैपिटलिस्ट्स हैं, ये तो अपना जो है किसी तरह से अपना पैसा बना लेंगे, लेकिन जो पब्लिक मनी है वो डूब ना जाए, इसीलिए वो ये एक्टिविज्म के तहत वो रिपोर्ट तैयार करके काफ़ी वक्त वो बिताते हैं और रिसोर्सेज भी डालने पड़ते हैं, क्योंकि 2 साल तो इसी इन्वेस्टिगेशन में लगा, उन्होंने बताया। तो फिर वो चाहते हैं कि लोग जो है इसके बारे में जो है उनको पता चले, ताकि वो आगे इसमें इन्वेस्ट ना करें और उसका जो है रियल वैल्यूएशन, जो एप्रिसिएशन है होना चाहिए, वो हो जाए, कि उसके दाम घट के जो है। और ये वो कंपनी है normalize भी बहुत छोटी, मैं सुना 10-11 बंदे ही काम करते हैं, हाँ, 7 हाँ। बंदे काम करते हैं। हाँ, उतना ही है, 5-6 लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत क्लोज टीम है। तो इनके बारे में बहुत अच्छा प्रोफाइल मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ टाइम पहले लिखा था, जब इन्होंने एक ये निकोला कॉर्प करके एक बहुत नई एक स्टार्टअप कंपनी थी अमेरिका की, अभी भी है, वो इलेक्ट्रिक कार्स बना रही थी और बहुत प्रॉफिट में थी। इनको शुबा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, तो इन्होंने इन पे रिपोर्ट तैयार करके मार्केट में 2020 में इन्होंने रिलीज़ कर दी। उसके बाद जैसे अब हो रहा है अदानी ग्रुप के साथ, उसी तरह से उस कंपनी ने भी बोला कि जो है हमारे जो है ऊपर अटैक हो रहा है, हमने तो सब बाय द बुक किया है, तो हम पे कैसे आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो अमेरिका है, तो वहाँ पे जो उनके सीईओ थे उनको रिज़ाइन करना पड़ा। बाद में इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस भी हो गए, केस चार्ज हो गए फॉर्जरी के लिए, कॉर्पोरेट फ्रॉड के लिए। तो ये इनका काम बहुत पुख्ता माना जाता है। अच्छा, अडानी के केस में, गौतम अडानी के केस में उन्होंने मैनिपुलेशन की है, इन्होंने दोष लगा दिए। जी अभी मुकदमा चला नहीं, जी। अब क्या होगा? हाँ, अब मुकदमा चलेगा भी क्या, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी इसको देखना चाहिए था, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो इनकी नज़र में सब कुछ रहना चाहिए जो ऑन पेपर है। क्या वहाँ पे एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो हट गए हैं, उन्होंने क्या इस पे नज़र नहीं दी? इनके मुताबिक सेबी को पता है, क्योंकि इनके खिलाफ ऐसे पास्ट में 4 बड़े इन्वेस्टिगेशंस हो चुके हैं कॉर्पोरेट फ्रॉड के, और एक केस का जब इन्होंने पता किया सितंबर 2022 में, तब उनकी तरफ से बताया गया कि इस पे अभी भी पड़ताल चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि सेबी को पता नहीं है। और अलग आप ऐसे क्ਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਬੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਡਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
अभी तक उन्होंने कुछ बोला नहीं है। जैसे आप आरटीआई एक इंक्वायरी की थी हिंडनबर्ग रिसर्च ने, तो उस इंक्वायरी के जवाब में उनकी तरफ से बोला गया कि अभी भी इस पे इंक्वायरी चल रही है, कोई इस पे जो है वर्डिक्ट नहीं आया है या फिर कोई एक ठोस स्टेप नहीं लिया गया है, इसीलिए इसके बारे में डिटेल्स आपको बता नहीं सकते। दिस मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, ऐसे बोला। इसका मतलब तो यही बनता है कि सेबी को पता तो है कि ये अदानी ग्रुप ने कुछ तो गड़बड़ किया है, हो सकता है इस केस में नहीं लेकिन किसी और केस में। और आप अगर मार्केट का जो आप फंक्शनिंग आप देखें कि अदानी के स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को सबसे पहले वो खतरा भांप लेता है, नहीं जहां पे लॉस मेकिंग पोटेंशियल हो वहां पे वो नहीं डालेगा। तो ये अचंभे की बात एक इंडिकेटर है ये भी। एक इंडिकेटर ये भी है कि आपके म्यूचुअल फंड्स ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया। आपके सबसे बड़े बड़े जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो आपके स्टेट कॉरपोरेशंस हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, LIC हो गया। LIC तो बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन के सामने आया है अभी। और ऐसे ही इस केस में तकरीबन आपके 30 शायद बड़े छोटे ऐसे बैकर्स हैं, एंकर इन्वेस्टर्स, जो इस पूरे ग्रुप को चला रहे हैं, मतलब जो डेट दे रहे हैं, जो उनको उधार दे रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ जी ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? देखिए, अब अदानी का इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ा फैल चुका है। अदानी 2019 में, एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, 2019 में अदानी ने एयरपोर्ट्स सेक्टर में पांव रखा। 2021 तक 8 बड़े एयरपोर्ट हिंदुस्तान के अब अदानी चला रही है। ये कैसे हो सकता है? नहीं तो ये तो एक फेवरेटिज्म का सवाल तो यहाँ पे पैदा ही हो जाता है। लोगों को पता भी है कि जैसे अब बहुत बड़ा जोक माना जाता है हिंदुस्तान में, जो अडानी है और जो अंबानी साहब हैं, इनके बारे में तो लोग जोक्स, आप इंटरनेट आप खोलेंगे तो इतने मीम्स जोक्स मिलेंगे। एक आपको पता होगा जो कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, बड़े फेमस हैं। उन्होंने एक दफ़ा ऐसे ही वीडियो में बड़ा मशहूर हुआ था, बोला था कि मेरे और अंबानी जी के बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने मजाक के तौर पे बोल दिया था, ये बताने के लिए कि कुछ तो जो है मुल्क के जो स्ट्रिंग्स जो है ना वो कोई और चला रहे हैं। ये उनका कहना है, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन अल्टीमेटली लोगों में ये बात तो पहले से लोगों को शायद पता है कि कुछ तो हो रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए। एक फेवरेटिज्म का पॉइंट तो आपका बनता ही है, क्योंकि अगर आप अदानी साहब का पूरा ट्रैजेक्टरी देखेंगे कि 2014 इलेक्शन से पहले जब वो गुजरात में थे, उनका लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स में दुनिया के उनका नंबर 609 नंबर पे आता था। उनका टोटल पर्सनल वर्थ था $2.8 बिलियन, जो आज की तारीख में बढ़ के, जो ये 24 तारीख से पहले इनका 120 बिलियन डॉलर्स का, इनका उससे भी ज़्यादा का उनका नेटवर्थ था, जो कि पिछले 3 सालों में $100 बिलियन से ज़्यादा इनका नेटवर्थ हो गया है। तो 2.8 बिलियन से आप 120 बिलियन तक आ गए। और जब कल, क्योंकि इस रिपोर्ट के आने की वजह से अब उनका घट गया है, अभी भी जैसे मंगलवार हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से मार्केट बंद होने तक इनका नेटवर्थ था $84.4 बिलियन, यानी अब वो 11 नंबर पे आ गए हैं। और भी गिरावट आई तो फिर एशिया में भी वो नंबर 2 पे आ जाएंगे मुकेश अंबानी साहब के बाद। तो इतना ग्रोथ किसी भी कंपनी का, ये सबके लिए मिस्ट्री है कि कैसे हुआ है। तो हमें अंदाजा तो यही लगाना पड़ेगा कि बहुत बड़ा स्टेट बैकिंग है। ਅੱਛਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਰਗੜੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। जी, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚੇ ਨੇ? देखिए, अल्टीमेटली अगर स्टेट फंडिंग आपका जा रहा है और अगर आपको आपके स्टॉक्स में अगर भारी गिरावट आती है, तो अल्टीमेटली वो पब्लिक का पैसा ही डूब रहा है ना। क्योंकि आप देखें कि हालांकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उनका जो अदानी ग्रुप में जो उनका एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। उनका जो टोटल वैल्यू है उसका शायद 1% हिस्सा अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। इसके बावजूद अगर आपका वैल्यूएशन गिरता है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक 7 अदानी के लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स स्टॉक्स में
809% औसतन इजाफा हुआ है पिछले 3 सालों में। तो इसका, और इसमें 85% डाउन साइड है। मतलब क्या, अगर स्टॉक्स में गिरावट आई तो 85% उसका वैल्यूएशन घट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट कॉर्पोरेशंस ने पैसा लगाया वो रिकवर वो कर नहीं पाएंगे, या फिर दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे, कोई सेल आउट करना पड़ेगा, कुछ बेचना पड़ेगा, ऑक्शन करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद इतना पैसा शायद ना निकले। अब वो जो लॉस हो गया, वो लॉस किसको पास ऑन होगा? वो तो आम इंसान को होगा। जो एलआईसी में लोग पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी खुद एलआईसी में मेरे पॉलिसीज हैं, वो हर कोई करता है हिंदुस्तान में। एलआईसी का सब्सक्राइबर बेस है 250 मिलियन। तो आपके पैसे डूबेंगे। मेरे पैसे डूबेंगे, और जो जिन लोगों ने एलआईसी में इन्वेस्ट किया है या स्टेट बैंक में इन्वेस्ट किया है उनके डूबेंगे। को आपको, जैसे आप किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ बोनसेस मिलते हैं। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਡਾਨੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ, जी ਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? हाँ, धमकियां तो दे रहे हैं। अब वो सही में धमकी है या गीदड़ भप्पी है, वो वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हिंडनबर्ग ने तो वेलकम किया है, बोले कि आप चाहें, और हम तो इनकरेज करेंगे कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में आप केस फाइल करें, क्योंकि यूएस में अगर आप केस फाइल करते हैं तो डिस्कवरी डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जो आप शायद पब्लिकली ना शेयर करना चाहें, वो आपको इस कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर उस पर वो पड़ताल करेगी और अपना डिफेंस उसी हिसाब से तैयार करेगी। तो इनको तो, इनके लिए तो फायदा है। वो तो बोल रहे कि हमारा तो फिर केस और भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि हमें तो स्ट्रांग, हमें लग रहा है स्ट्रांगली कि शायद कुछ तो गड़बड़ आपने किया है। तो इसीलिए अब बहुत संभल के चल रहे हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि बड़े कंपनीज का, और जैसे अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बहुत बड़ी कंपनी है और स्टेट बैकिंग है, ये तो साफ जाहिर होता है। तो स्टेट कभी नहीं चाहेगी कि एक ऐसी कंपनी जिस पे उसका हाथ हो वो डूबे। और यहाँ पे अब जैसे देखिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि कहीं पे अदानी इंडस्ट्रीज़ कोई एक माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ, या फिर हमने देखा श्रीलंका में एक वो उनको विंड पावर एक फैक्ट्री उन्होंने बिठाना था, विंड पावर प्लांट। तो वहाँ पे अब पिछले साल जब श्रीलंका में वो क्राइसिस हुआ, तब वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो चेयरमैन थे, उन्होंने ये बोल दिया कि हमें तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने बोला था कि ये कॉन्ट्रैक्ट अदानी साहब को दिया जाए। तो आमतौर पे क्या होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है कहीं पे, वो चाहेगी कि एक स्टेट बैक कंपनी जाके वहाँ पे इन्वेस्ट करे, है ना? तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिले, ओएनजीसी हो, चाहे कोल इंडिया हो, जो भी कंपनी हो, तो स्टेट अपने अपने कंपनीज को प्रमोट करती हैं। इस केस में इंडियन स्टेट ने एक प्राइवेट कंपनी को प्रमोट किया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में माइंस, पहले जब ये माइन कारमाइकल माइन खरीदने की बात हुई थी, तब अदानी साहब को कोई बैंक फंडिंग नहीं दे रहा था। मोदी साहब गए थे ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे, और उसके बाद वो डील हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक कंसोर्शियम बनाएगी बैंक्स का। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, हाँ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕॉन्ट्रैक्ट ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਮੇਰਾ। हाँ, ऐसे ही हुआ है, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट वो डिसाइड करेगी वो किसको देना है। तो आज हम देख पा रहे हैं कि इस गवर्नमेंट के साथ ये कोशिश करते रहते हैं हमेशा कि अपने जो इनके जो बड़े जो ग्रुप्स हैं, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और इनके केस में सिर्फ दो हैं, अदानी साहब सबसे बड़े हैं और कुछ हद तक मुकेश अंबानी साहब भी हैं। तो इन दो कंपनीज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है किसी भी सूरत में। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਡਾਨੀ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜੇਕਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? नहीं, असर तो देखिए शायद रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा ना पड़े अभी, लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तो इतने बड़े कंपनी का फेल होने का मतलब ये है कि आपने शायद वो चेक्स एंड बैलेंसेस अच्छे से आपने नहीं रखे, और हिंदुस्तान का जो स्टॉक मार्केट है उसके बारे में तो बहुत अच्छी बातें कही जाती है कि ये बहुत एक फेयर प्ले वहाँ पे होता है, कि इतने जो है सेबी वगैरह रेगुलेटर्स भी हैं, और
जो है एक बहुत ही जो है कंसोलिडेटेड वेल नेटवर्क्ड एक स्टॉक मार्केट है और दुनिया में किसी भी और स्टॉक मार्केट के साथ जो है बराबरी इसकी होती है। तो ऐसे एक मार्केट में अगर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अगर कम हो गया, क्योंकि इसका आपने नाता जोड़ दिया है स्टेट के साथ, है ना, तो अब अगर इतनी बड़ी कंपनी जिसको स्टेट ने बैक की है वो फेल हो जाती है, इसका मतलब ये कि हिंदुस्तान के स्टेट पे भी एक सवाल या निशान पैदा हो जाएगा, है ना। तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ऑलरेडी एक कहा जा रहा है कि रिसेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है आगे, है ना। और ऐसी सूरत में कोई ऐसी कंपनी की वजह से अगर मार्केट में बहुत बुरा असर पड़ता है, और वैसे भी इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान के मार्केट से बहुत टाइम पहले से पैसा वो निकाल के लेके जा रहे हैं, ऐसे बहुत से रिपोर्ट्स आ चुके हैं, तो ये और भी इसको डिस्टेबलाइज कर देगा। तो अल्टीमेटली असर तो आपकी इकोनॉमी पे पड़ेगा, मार्केट्स पे तो ज़रूर पड़ेगा। ਅੱਛਾ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਾ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। जी जी जी। ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? देखिए, यही तो बहुत बड़ा मसला है अभी हिंदुस्तान में कि आपने पहले तो ये कि इस कंपनी को आपने हिंदुस्तान की अजमत के साथ आपने जोड़ दिया है। इनके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं जोगेशिंदर सिंह, जिन्होंने जब पहली बार जो 24 तारीख को रिपोर्ट आई उसके बाद जो स्टेटमेंट गया, उसमें आपने देखा होगा उस वीडियो में हिंदुस्तान के फ्लैग के पीछे, हाँ, तिरंगा पीछे है, और आप जो ऐसे बोल रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के जैसे किसी सफीर हैं, आप किसी फॉरेन मिशन में। ऑस्ट्रेलियन है। हाँ, तो अब वो कह रहे हैं, और बहुत ही मतलब वाहियात बात कही उन्होंने कल, कि इसको उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के साथ जोड़ दिया। ऊँट दी पटांग पता नहीं लगा। हाँ, तो बोले कि जो बाकी हिंदुस्तानी जो है, जो उनको खुशी हो रही है कि अदानी साहब पे ऐसे इल्ज़ामात लगे हैं, उनको ये याद दिला दें कि ये जलियांवाला बाग में भी ऐसे ही हुआ था, हिंदुस्तानियों ने बाकी हिंदुस्तानियों पे गोली चलाई थी। ये बहुत ही वाहियात बात है। और मज़े की बात यह है कि वो खुद ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, और आप इस पूरे जी, और आप इस पूरे केस को आपने हुब्बुल वतनी का चोला पहना दिया है कि अब जो है लोग, अब मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जाके हिंडनबर्ग को टैग करके उनको गालियां दे रहे थे। ये कौन लोग हैं? ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो रूलिंग पार्टी के हिमायती हैं, मोदी साहब के हिमायती हैं, और क्योंकि गौतम अदानी साहब को उनका बहुत करीब माना जाता है, इसीलिए अब उनके खिलाफ कोई भी बात ये लोग सुनेंगे नहीं। तो अब आप ये कह रहे हैं, और बहुत से मैंने देखा कि जो मार्केट इन्वेस्टर्स हैं, जो पब्लिक कमेंटेटर्स हैं, उन लोगों ने ये कहा है कि इसके बारे में ज़्यादा बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये हिंदुस्तान की कंपनी है और हिंदू बिजनेसमैन, हाँ, हिंदू बिजनेसमैन है। वैसे मतलब बहुत लोगों ने बोला कि ये एंटी हिंदू कॉन्स्पिरेसी है। अभी बीच में 2-3 वाकयात ऐसे हो गए हैं कि एक BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, और उसके बाद ये पठान मूवी हिट हो गई। अब ये केस सामने आया है, तो इसीलिए लोग जो है इसको एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बोल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट के बैकर्स हैं, जो भाजपा के बैकर्स हैं, वो लोग कह रहे हैं। इसका कोई सिर पैर नहीं है इस आर्ग्यूमेंट का। ये बस छुपाने की कोशिश हो रही है कि इस चीज़ को किसी तरह से डिफ्लेक्ट किया जाए। लेकिन सवाल तो पैदा हो गए हैं, मतलब सवाल खड़े हो गए हैं, और अगर कोई रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, उनको अच्छे से जवाब देना चाहिए। उन्होंने 413 पेज का एक रिपोर्ट दर्ज किया है एज अ रिस्पॉन्स। उसमें हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि उन्होंने 88 सवाल पूछे थे अदानी ग्रुप को, जिनमें से 62 के तो उन्होंने जवाब दिए ही नहीं, वो छोड़ ही दिए। और जो बाकियों के जवाब दिए वो भी वशी तौर पे उन्होंने जवाब दिए कि आपके भाई साहब का इसमें क्या रोल है। वो बोले कि हमें पता नहीं। तो ये कोई जवाब नहीं होता है। जबकि 22 जो आपके टॉप लीडर्स हैं, उनमें से 8 अदानी फैमिली के लोग हैं। तो इंटरनली ये माना जाता है कि ये फैमिली ओन बिजनेस है। उसके बाद अगर आप अपने भाई साहब का, अच्छा, इस कंपनी ने ये भी बोला है, हिंडनबर्ग ने, कि इनके कुछ 38 शेल कंपनीज हैं जो टैक्स हेवन, जो मॉरिशस हैं, जो करीबन हैं, वहाँ पे इन लोगों ने शेल कंपनीज खोल के रखा है, और वहाँ से फंड इधर से भी जाता है और उधर से भी आता है। कैसे होता है वो ट्रांजैक्शन, वो काफ़ी ओपेक है। और इस बारे में शायद पहले इंडियन रेवेन्यू इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसके बारे में शायद पड़ताल की थी, लेकिन उसमें रिपोर्ट क्या निकला वो किसी को नहीं पता है, ऐसा ये लोग मान रहे हैं। तो इतने जो एक डीप नेक्सस जो है स्टेट का और एक प्राइवेट कंपनी का, ये शायद पहले हमने देखा नहीं है। हालांकि ऐसे कैपिटलिस्ट रहे हैं, जैसे अंबानीज का 80s में उनका भी स्टॉक
डूबने वाला तो ये रातों रात जो है पैसा आ गया कहीं से मार्केट में और वो बच गए। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਟਾਟਾ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और ये सरमाएदारों का रिलेशनशिप स्टेट के साथ शुरू से रहा है। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उसके बाद से 50s से हमने देखा कि बिरला वगैरह इन सब का जो है एक कनेक्शन रहा है हमेशा, इसको हम नकार नहीं सकते। तो उस नाते से अगर हम देखें तो शायद कुछ नया नहीं है, लेकिन नया ये है कि स्टेट ने सब कुछ लगा दिया है एक प्राइवेट कंपनी के पीछे ਬਚਾਉਣੇ के लिए। हाँ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ जी ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ जी ਜੇ ਉਹ ਬਚਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਹਿੰਦੂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਝਿਜਕਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੇਜਰ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਲਵੇ ਹੁਣ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इंटरनेशनली इनके खिलाफ अगर इंक्वायरीज होंगे, अभी भी हमें ये मान देखना चाहिए कि ये जो रिसर्च इन्होंने की है ये इनके फॉरेन एसेट्स पे किया है ना, हिंदुस्तान के एसेट्स पे अभी भी उन्होंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं है। क्योंकि वहाँ पे फिर हिंदुस्तान के कानून लागू हो जाएंगे तो वो एक अलग वो बॉल गेम ओवरसीज शैल कंपनियां बना के टैक्स हेवन का फायदा उठाना जी ये दोष मेजर दोष है। जी जी बिल्कुल। तो आने वाले वक्त में और ये लॉन्ग टर्म में असर ज़रूर पड़ेगा। वो इसलिए भी है क्योंकि अब जो बाकी जो सरमाएदार हैं हिंदुस्तान में उनको ये लगने लगा है, और इस बारे में पहले जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजरी फाइनेंशियल एडवाइजरी कमेटी में थे रथिन रॉय इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात साझा की थी कि अब एक किस्म का जो है एक आप कह सकते हैं कि एक डिसल्यूशनमेंट आ गया है बहुत कैपिटलिस्ट में, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब सिर्फ दो ही लोग हैं जिनको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उनको शायद बेनिफिशियल ट्रीटमेंट मिलेगा और बाकियों का इतना हो नहीं रहा है। तो एक लेवल का फ्रस्ट्रेशन भी उनमें आ चुका है। इन्वेस्टर्स के लिए भी ये बहुत बुरी बात है कि अगर उनका कॉन्फिडेंस, और जो आम इन्वेस्टर है जो स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाते हैं, वो अगर कंसिस्टेंटली ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप्स में इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं तो मार्केट के लिए वो अच्छी बात नहीं होगी। आपका फाइनेंशियल हेल्थ तभी सही रहता है जब आपके इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हो, क्रेडिट रिवॉल्व हो रहा हो, है ना, तो तभी आपका मार्केट भी सही रहता है, तभी आपकी इकोनॉमी भी सही रहती है। वो अगर रुक जाए और रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अगर कम हो जाए तो फिर ओवरऑल आपकी इकोनॉमी पे और आपकी शाख पे बहुत बड़ा दाग लगेगा। तो इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। आई थिंक एक बैंक्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ जी बैंकों ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ। हाँ हाँ बिल्कुल। बैंक्स का तो आप देखें कि जैसे अब एक ही मैं मिसाल दूंगा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने एक कंसोर्शियम तैयार किया था 2014 में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो उस माइन में कारमाइकल माइन ऑस्ट्रेलिया में $1 बिलियन का इनको लोन दिया जाएगा, जो स्टेट बैंक की तरफ से वो जाएगा। तो ये तय हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ, क्योंकि प्रोटेस्ट्स आने लगे, ऑस्ट्रेलिया में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुए और बहुत बड़े इन्वेस्टर ग्रुप हैं एक, जिन्होंने एसबीआई के जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं वहाँ से पैसा विड्रॉ करने का उन्होंने थ्रेटन कर दिया कि अब आप अगर इसको सपोर्ट करेंगे तो हम वहाँ से हम जो है विड्रॉ कर जाएंगे। तो एसबीआई भी प्रेशर में आ गई। तो अब वहाँ पे क्लैरिटी कम है क्योंकि पब्लिकली बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। लेकिन बैंक्स के बारे में अगर हम पूछें तो इंटरनली बहुत लोग बोलते हैं कि अब उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है इन साहब को बैक करने में। लेकिन क्योंकि अब ऑर्डर आते हैं तो फिर वो कुछ कर नहीं सकते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है इंडियन गवर्नमेंट का, जैसे LIC है स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, वो सरकार ने बोल दिया तो फिर आपको करना ही पड़ेगा उसको। पर जो प्राइवेट बैंक्स हैं ओरिएंटल ये वो तो इनका कहा नहीं मानेंगी। वो नहीं मानते, इसीलिए उनके पास जाते भी नहीं है ना तो उनका भी बैकिंग का आप देखें ना, अब जैसे अब ICICI बैंक में जो वो घोटाला हुआ वो डूब गई, येस बैंक, तो ये प्राइवेट बैंक भी हिंदुस्तान में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कंपनीज को जिनका बहुत बड़ा डेट, इनका कहते हैं जो गियरिंग रेशियो है, गियरिंग रेशियो अगर आपका हाई है, इसका मतलब ये है कि कोई जब डाउन साइड आएगा तो आपका डेट इतना ज़्यादा होगा कि आपके पास इतनी इक्विटी नहीं होगी कि आप उसको रीपे करें।
और इनके जो इसका एस्टिमेट आया है कि 85% आपका डाउन साइड है, मतलब कोई भी क्राइसिस होगा आपका वैल्यूएशन 85% गिर जाएगा। इसका मतलब तो ये बहुत खतरे वाली बात हो जाएगी। तो एक हद तक आप स्टेट फंडिंग से आप चल सकते हैं और शायद उससे कॉन्फिडेंस भी आता है। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उनको लग रहा है क्लियरली कि ये इंडियन गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है। शायद डायरेक्टली वो ना बोले, लेकिन इनडायरेक्टली हर किसी को पता है, कोई हर चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। सबको पता है कि इनके जो है कनेक्शंस बड़े क्लोज हैं और शायद इंडियन गवर्नमेंट इनको बैक कर रही है। इसीलिए जो है अभी आपने दुबई का पैसा देखा, वो आप आके डाल दिया। ऐसे ही आपको और भी ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे इजराइल में अभी वो अनाउंसमेंट हो गया कि वो हाइफा पोर्ट पे ये डेवलप करेंगे अदानी। तो अब आपने ऐसा एक इमेज दे दिया है, तो शायद जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जिसको इन्वेस्ट करना है, वो शायद इसको नज़रअंदाज कर दे कुछ हद तक। लेकिन हम ये गारंटी से नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, और किसी ने क्या खूब कहा इस रिपोर्ट में, मैंने एक लाइन पढ़ी, किसी से उन्होंने बात की थी अडानी ग्रुप के फॉर्मर एम्प्लॉय से, हिंडनबर्ग रिसर्च ने। उन्होंने ये बोला कि जितना हमें लग रहा है, मैं एग्जैक्ट अल्फाज में भूल गया हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि इस कंपनी का फॉर्चून इस गवर्नमेंट के साथ जो है जुड़ा हुआ है। कल को ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो ये कंपनी भी शायद ना रहे। तो ऐसे बोल दिया है। तो अगर ऐसी बात है ना, तो बहुत खतरे वाली बात है किसी भी कैपिटलिस्ट या किसी भी बड़े कंपनी के लिए। एक पार्टी के साथ अगर आप अपना फॉर्चून जोड़ देते हैं, तो फिर पार्टी या गवर्नमेंट जब बदल जाएगी तो फिर आपके लिए बड़ा नुकसान होगा। और बहुत ऐसे कंपनीज हैं जो किसी भी गवर्नमेंट पावर में हो, जैसे रिलायंस का आपने देखा, वो पिछले गवर्नमेंट के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात थे, इस गवर्नमेंट के साथ तो बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं। लेकिन इस कंपनी का, अदानी साहब का, पिछले गवर्नमेंट में इतना अच्छा ना नहीं था प्रेजेंस। 2002 में तो ये अदानी साहब अरेस्ट भी हो गए थे एक चीटिंग केस में दिल्ली में। तो वहाँ से आप देखिए, अगर ये पूरी हिस्ट्री है, इसको हम नकार नहीं सकते। और अब ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े, मतलब एशिया के नंबर 1 है और दुनिया में इससे पहले 3 नंबर पे बीजेपी थे। गवर्नमेंट बदल जाती है, हाँ, तो इनके सितारे भी गर्दिश में चले जाएंगे। हाँ, तो ये आप अंदाजा लगा और सकते हैं। यहाँ ये मेक श्योर करेंगे कि ये सरकार मत बदले, चाहे कितनी दौलत हमें इसमें लगानी पड़े। हाँ, तो ये एक कहते हैं ना कि चोली दामन का जो एक नाता होता है ना, तो ऐसा कहते हैं। हालांकि अभी ये सारे एलिगेशंस हैं, लेकिन जो मार्केट का जो हम देखते हैं बिहेवियर, उससे यही लगता है कि मार्केट में लोगों को भी शायद पता है कि कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। म्यूचुअल फंड्स अगर कोई स्टॉक नहीं छोड़ी, इसका मतलब उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये एक आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड आपका स्टॉक बिहेवियर है जो कभी भी गिर सकता है। एक गल जरूर ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਹਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਲਾਏ ਆ, ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਸਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿपोर्ट है, जी, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ही ये सारी गड़बड़ हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पे भरोसा है, क्योंकि हमें भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि 3 साल में आपका एसेट वैल्यूएशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, नेटवर्थ, कि जो पहले कभी देखा नहीं गया। कि आप $2.8 बिलियन 2014 में आपका नेटवर्थ था, वहाँ से बढ़ के आप $120 बिलियन तक आप पहुँच गए। तो ये इतना बड़ा फासला आपने इतने कम वक्त में आपने कैसे तय किया, इस पे ज़रूर सवालिया निशान लगता है। सो देखते हैं क्या बनता है, लेकिन अभी तक कोर्ट में ये साबित नहीं हुआ। जी जी, ये एलिगेशन है और शायद इन्वेस्टिगेशन हो भी ना, और वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि सेबी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ पता इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की नहीं। नहीं, उनके 4 ऐसे इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, ऐसा बताया था, इस रिपोर्ट के हवाले से बताया था। तो हो सकता है और भी ऐसे केसेस हो जिनके बारे में हमें नहीं मालूम। लेकिन हिंडनबर्ग ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਨਾ ਆਉਂਦੀ, सेबी ने तो कोई चीज़ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ नहीं हाले तक। जी, और बड़ा मुश्किल होता है ऐसे फाइनेंशियल कोई अगर फ्रॉड का आपको सस्पिशन हुआ है, तो उसमें कुछ भी ठोस सबूत निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और ख़ास करके एक ओपेक सिस्टम में, जहाँ पे आपको पता है कि जो भी सरकारी एजेंसीज हैं वो शायद आपके साथ डिटेल साझा नहीं करेगी। ये भी है कि कुछ लोगों को आप देखते हैं, जैसे बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट सुचेता दलाल, जिन्होंने हर्षद मेहता का स्कैम जो उन्होंने पर्दाफाश किया था ना, सुचेता दलाल जैसे जर्नलिस्टों को भी अब एक्सेस नहीं मिल रहा है। अब उनके साथ भी वो कहते हैं कि जो लोग जो है पहले डेटा शेयर करते थे, जो ऑफिसर्स इंटरनली लीक करते थे, अब वो भी नहीं हो रहा है। उनको भी खौफ है कि किसी को पता चल जाएगा, ऊपर कोई देख रहा होगा।
तो ऐसा एनवायरनमेंट में आप कोई ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद आप कर नहीं सकते। ये बहुत दुख की बात है वैसे हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए, लेकिन सबके लिए अच्छा यही होगा कि अगर एक अच्छे से पड़ताल हो इस पर, और कहाँ पे ये फंड्स मूव हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं। और ये तो कह रहे हैं कि काफ़ी दशकों से हो रहा है, 88 से अदानी साहब इंडस्ट्री में यूज हैं। कर रहे हैं ये हाँ, शेल कंपनीज। हाँ, उसके बाद से शायद 90s के दौर में शायद ऐसा शुरू हो गया था। तो क्या है वो डिटेल्स, अगर ये डिटेल्स सामने आ जाती हैं तो हिंदुस्तान के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी। इसमें आप हिंदुस्तान की अजमत को चोट नहीं पहुंच रही है। इससे लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपका पैसा आपको कैसे महफूज रखना चाहिए। आप तभी महफूज रख पाएंगे अगर आपके पास ज़्यादा मालूमात होगी, आपको पता होगा कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। LIC इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आप देखिए, बहुत जो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा है यूनिट पे लिंक प्लान। जब आप लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, आजकल यूनिट लिंक प्लान्स बहुत फेमस हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक हिस्सा वो मार्केट में लगा देते हैं। एक सम एश्योर्ड होता है जो कि बड़ा मिनिमम सा अमाउंट होता है कि 60,000 रुपये आपको मिनिमम आपको सम एश्योर्ड है, आपको मिलेगा जब ये मैच्योर होगा, या 1 लाख रुपए। आप चाहे 15 लाख लगाए, लेकिन मिनिमम आपको 1 लाख या 2 लाख आपको मिलेगा। आमतौर पे क्या होता है कि यूनिट लिंक प्लान ने अच्छा कर लिया, आपके पैसे बढ़ गए और आपने जो 10 लाख रुपए लगाए आपको 12 लाख रुपए मिल गए वहाँ पे। लेकिन अगर पैसा डूब रहा है तो जहाँ पे आपको 10 लाख मिलना था वहाँ पे आप गिर के 1 लाख पे आ जाएंगे, क्योंकि सम एश्योर्ड तो उतना ही था। अल्टीमेटली आपका नुकसान हुआ। तो इसीलिए जो मार्केट का अच्छे से फंक्शन होना, और स्टेट ऐसे एजेंसीज का जिनके पास इतना ज़्यादा पब्लिक का पैसा है, और गवर्नमेंट को अपना भरोसा बनाए जी, रखना ये जी। बड़ा लाजमी है। जी बिल्कुल। तभी तो अब इकोनॉमी सिर्फ एक कैपिटलिस्ट से नहीं बनती है। इकोनॉमी में स्टेट का हिस्सा होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं, आप और हम जैसे लोग, सबका हिस्सा होता है। सब मिला करके इकोनॉमी को आप तैयार करते हैं ना। तो उसका एक अगर बड़ा हिस्सा, और ये पिछले 3-4 साल में और भी बड़ा हो गया है कि हर सेक्टर में आपका प्रेजेंस है। आप पावर में हैं, आप माइंस में हैं, आप एयरपोर्ट्स में हैं, आप जहाज ये पोर्ट्स में भी हैं। तो हर सेक्टर में अगर आपका फैला हो रहा, अब आप मीडिया में भी आ गए हैं, आपने NDTV को भी खरीद लिया है। तो ऐसे इतना फैलाव हो गया है आपका पिछले 3 सालों में, तो पब्लिक का ये हक बनता है ये जानने का कि आपका इतना अप्रिसिएशन ऑफ एसेट कैसे हुआ 3 सालों में। जी जी, चलो देखते हैं क्या होता है अब। जी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ਓਏ ਸ਼ਿੰਦਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ